مال روڈ پر اساتذہ کا دھرنا جاری، مظاہرین نے مال روڈ بند کر دیا۔ اساتذہ کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ کہتے ہیں کہ اس حکومت میں 5ویں بار احتجاج کر رہے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اس بار نوٹیفیکیشن لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے، مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ہم زمان پارک کا رخ کریں گے۔ تفصیلات جانیں گے حمزہ خورشید سے۔ حمزہ اپڈیٹ کیجیے گا۔ حمزہ اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا۔ کلب چونک میں یہاں پر جو ہے وہ 2 دن قبل جو اساتذہ کا ایک دھرنا چل رہا تھا، جنہوں نے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں 8 کلب روڈ چونک پر۔ یہاں پر جو ہے وہ 2 دن سے احتجاج جاری تھا اساتذہ کا، جنہوں نے کل جو ہے وہ زمان پارک بھی بند کیے رکھا تھا۔ یہاں پر 2 کیڈرز ہیں بیسیکلی، ایک ہے سیکنڈری اسکول ایجوکیشن اور دوسرے ہیں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز۔ ان کا کہنا صرف یہ ہے کہ ہمیں جو 2014 سے 2018 تک کانٹریکٹ پہ ملازمین کو ہائر کیا گیا تھا، ان کو جو ہے وہ ابھی تک ریگولرائز نہیں کیا گیا، اور آج کے اجلاس میں جو ہے ان کی سمری منظوری کی ان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی، جس وجہ سے یہ کل زمان پارک سے اٹھ کر واپس 8 کلب آئے تھے۔ لیکن آج کی سمری منظور تو نہیں ہوئی، لیکن ان کی جو ہے وہ ایک مذاکراتی کمیٹی بنا دی گئی، جس کو یہ ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ اب 8 کلب روڈ ایک کونے سے اٹھ کر انہوں نے چونک جو ہے وہ دوبارہ سے بلاک کر دیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے، جو کہ صرف ایک مطالبہ ہے، تو ہم لوگ جو ہے وہ زمان پارک کی جانب بھی جائیں گے، اور ہم لوگ جو ہے وہ ظہور الہی روڈ بھی جائیں گے۔ میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ دھرنے کے نمائندگان موجود ہیں، ان سے ان کے مطالبات جانتے ہیں اور ان کا اگلا لائے عمل جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا۔ جی 2014 سے 18 تک کے سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز ہیں، اے یوز ہیں، ان کی مستقلی کے بغیر اب واپسی ممکن نہیں ہے یہاں سے۔ اس کی وجہ ہے کہ کل ہم اسکول ایجوکیشن کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوئی تھی، اس کے اندر جو ان سے وعدہ ہوا تھا کہ ہم نے زمان پارک کھول دیا، آج کے دن کے لیے ہم یہاں بیٹھ گئے۔ اب یہ سارے دوست جو یہاں ان کے نمائندے ہیں، جو کور کمیٹی ہے، وہ اب مل کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کل سے پھر زمان پارک یا ظہور الہی روڈ کے اوپر ہی دھرنا دیا جائے گا۔ تو پھر اس کے مطابق جب تک ان کی مستقلی نہیں ہوتی، تب تک لاہور سے واپسی نہیں ہے ان لوگوں کی۔ اور یہ کمیٹی والا جو چکر ہے، یہ پچھلے 2 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر آج تک کچھ نہیں ہو سکا، اور نہ امید ہے ہمیں کہ کچھ ہونا ہے۔ باقی کام جو کرنے ہوتے ہیں، آپ نے کسی کو مراد دینی ہے، کسی کا کوئی مسئلہ حل کرنا ہے، تو دن سے رات نہیں ہوتا، 10 منٹ کے اندر کیبنٹ اپروو کر دیتی ہے۔ تو یہ 14,000 جو خاندان ہے، کیا یہ نظر نہیں آ رہے اس حکومت کو کہ ان کو مستقل کرنے کے لیے انہیں کمیٹیاں چاہیے، ان کو مستقل کرنے کے لیے انہیں باقی معاملات چاہیے؟ جی یہ رکاوٹ آ رہی ہے، وہ رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ ایکٹ کے اندر جب تبدیلی ہو چکی ہے تو پھر مستقلی ان کا حق ہے، وزیر اعلیٰ کی ثوابدید ہے، اور وزیر اعلیٰ نے ان کو مستقل کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان کے حق کے لیے ہم سب اساتذہ تنظیمیں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ میرے ساتھ نمائندہ کور کمیٹی بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ سر بتائیے گا، جو مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ مذاکرات کا آپ کوئی لائے عمل لائیں گے آگے؟ جی اس سے پہلے ہمارے 4 راؤنڈز مختلف مواقع پہ مذاکرات کے ہو چکے ہیں، لیکن اب ہم اس کمیٹی کو مسترد کرتے ہیں، اور متفقہ طور پہ میں پوری ذمہ داری سے کور کمیٹی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ہمیں کمیٹی نہیں منظور ہے، اور ہمیں کسی کمیٹی پہ اعتبار نہیں ہے۔ جب تک نوٹیفیکیشن نہیں کرتے ہم نہیں جانے والے۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کے دھرنے میں جو ہے وہ بچے موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، اگر مطالبات آپ کے نہیں مانے جاتے تو آگے آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ دیکھیں جی، ویسے بھی اگر ان کو ریگولر نہیں کرتے تو 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد ان کو نوکریوں سے نکالنا ہے، تو پھر انہوں نے خودکشیاں کرنی ہیں۔ آج ان کے سامنے، ان دروازے کے سامنے اگر مر جاتے ہیں تو کم از کم ان کے سر تو ہوں گے کہ ان لوگوں کو 14,000 خاندانوں کو نئی زندگی دینے کی بجائے آپ ان کو موت کی وادی میں دھکیل رہے ہیں۔ اور کرنا کیا ہے؟ کوئی اضافی بجٹ نہیں دینا پڑنا ان کو، جو تنخواہیں یہ لے رہے ہیں اس سے بلکہ ان کی تنخواہیں کم ہو جانی ہیں، صرف یہ اپنی جاب کا تحفظ مانگ رہے ہیں۔ اور 8 سال پہلے جب ان کو بھرتی کیا گیا تھا، ان کے ساتھ یہ کنڈیشن نہیں لگائی گئی تھی کہ جب آپ کو ریگولر کرنا پڑے گا تو آپ پی پی ایس سی جائیں گے۔ جب یہ این ٹی ایس پاس کر چکے ہیں، انٹرویو پاس کر چکے ہیں، اور ان کے رزلٹ ماشاءاللہ بہترین ہے، اور محکمہ تعلیم کا جو وہ چہرہ ہے کہ خوشنما رزلٹ دے رہے ہیں، تو اب ایک سازش کے تحت ان کو ریگولر نہیں کیا جا رہا، تاکہ پورے ڈپارٹمنٹ افراتفری پہلے اساتذہ جو ہے سڑکوں پر رہیں، اور اس کے بعد جب رزلٹ خراب آئیں گے پھر کہیں گے جی اساتذہ کام نہیں کرتے، لہذا ان اداروں کو جو ہے نجکاری کر دی جائے، جس طرح یہ پی آئی اے کی یا اسٹیل مل کی کرنے جا رہے ہیں۔ سر یہ اپنا اگلا لائے عمل بتائیے گا۔ حمزہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اس وقت اساتذہ نے احتجاج کرتے ہوئے مال روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ مال روڈ بندش کے باعث کینال روڈ، گورنر ہاؤس، ایبٹ روڈ اور دیگر ملحقہ سڑکوں پر ٹریفک کا شدید دباؤ ہے، جبکہ ٹریفک جیم کے باعث مسافر کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹریفک کی مزید صورتحال بارے جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز محمد یاسین سے۔ یاسین آپ بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، ہر روز ٹریفک جیم رہنا ایک لاہور کی پہچان بن چکا ہے، اور خاص طور پر جس روز بارش بھی ہو اور
मुजाहरे और धरने भी लाहौर में जारी हों तो यकीनी तौर पर ट्रैफिक के बहाव में जाम होने में गैर मामूली एक इजाफा हो जाता है और बदकिस्मती से लाहौर की ट्रैफिक को आज इन दोनों सूरत हाल का सामना है। आज डेविस रोड माल रोड चौक पर सास्ता मुजाहिरीन ने चूंकि दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद कर दी है, धरना दे दिया है, उसकी वजह से जो उसके कुर्बो जवार और मुल्का सड़कें हैं उस पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। इस वक्त जो समझा जाए कि कनार रोड, माल रोड, गोना हाउस चौक, अपर माल, इन तमाम सड़कों पर जो है ट्रैफिक का शदीद दबाव है, ट्रैफिक मुसलसल जैम है। जहाँ मैं ये भी बताता चलूं कि बहुत सी ऐसी सड़कें भी हैं जहाँ एम्बुलेंसें फंसी हुई हैं और जो कुछ लोग फैमिली के साथ फंसे हुए हैं, कई गाड़ियों के पेट्रोल खत्म हो गए हैं, पेट्रोल लोग धक्का लगाने पर मजबूर हैं। और ये समझा जाए कि आज जो लाहौर में जो भी निकला उसे मंजिल मकसूद पर तखीर से पहुंचना उसका मुकद्दर बन गया है। आज यूं समझे कि बिल्कुल इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल है कि हर तरफ जो ट्रैफिक जाम है, वार्डन अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हालात उनके कंट्रोल में है। हर तरफ जो है बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जो हर शख्स हाथ में हाथ रख के बैठ गया है, समझ गया है कि आज शायद घर पे बहुत तखीर से पहुंचेंगे और अपनी मनाजिल पर बहुत तखीर से पहुंचेंगे। और जो लोग हैं वो बिल्कुल ये हुकूमत को और जो भी जिम्मेदारान हैं इसके हैं उनको बुरा भला कह रहे हैं। इस वक्त जो मुख्तलिफ जगहों पे जो ट्रैफिक में जो खास एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं उसमें जो मरीज हैं उनके जो साथ उनके लवाकिन हैं वो भी इस वक्त सख्त परेशान हैं और मरीजों की हालत भी कई एम्बुलेंसेस में बिगड़ चुकी है। तो ट्रैफिक जो है वो इसमें यूँ समझा जाए कि आज गैर मामूली हद तक जाम है। जी अच्छा यासीन, हमें ये बताइएगा, ये एहतजाज के बायस ये ट्रैफिक मतलब ब्लॉक की गई है और काफ़ी जगह से माल रोड के इतराफ में काफ़ी जगह ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है, लोगों को तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक वार्डन की जानिब से क्या कहा गया है? कोई और मुतल्लिका इदारे कोई और ट्रैफिक के लिए रास्ते नहीं खोले गए? जी बिल्कुल, इसमें ये कहा जाए कि ट्रैफिक वार्डन तो अपने हाथ तक वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर लगता नहीं है कि उनको इस हवाले से अभी तक कोई कामयाबी हो सकी है। तब मैं ये आपको ये बताता चलूं कि जो सिटी और लाहौर हैं उनका कहना है कि मुजाहिरीन ने डेविस रोड को माल रोड के एक बार फिर चूँकि एक देर तक जो बंद रखा हुआ उसकी वजह से ट्रैफिक मसलसल रवानी मुतासर हो रही है। उनका ये भी कहना है कि जो नहर माल रोड और कनार रोड में डाइवर्शन लगाई हुई है और ट्रैफिक बरास्ता कनार रोड, लामा इकबाल रोड, जे रोड की तरफ भिजवाई जा रही है। फैसल चौक से आने वाली ट्रैफिक जो है वो गवर्नर हाउस चौक से चाइना चौक, सुंदरदास रोड की तरफ मोड़ी जा रही है और प्रेस क्लब से नहर माल रोड और से होती हुई ट्रैफिक सुंदरदास रोड से बाएं कनार रोड पर भिजवाया जा रहा है। और सिटी लाहौर का कहना है कि जो जिससे वाले जो ऐप दी गई है उसमें भी सूरत हाल पल पल आगाह किया जा रहा है और 15 ऐसे भी लोग मदद ले रहे हैं। तमाम जो वार्डन है, मैंने कुछ वार्डन ऐसे भी देखे हैं कि जो मुसलसल ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बाद थक कर एक तरफ खड़े हो गए हैं, उनके भी जो साफ जवाब दे गए हैं। और यूँ कहा जाए कि ये हर तरफ चूँकि ट्रैफिक इस हद तक आज ज्यादा जैम है कि लोग जो है वो सरापा एहतजाज होने के करीब हैं और वो समझते हैं कि इसके जिम्मेदारान जो है उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जी ठीक है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कल भी ट्रैफिक का जैम यही रहा था, ट्रैफिक ब्लॉक रही थी और लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन और हमजा खुर्शीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करने और आपको बताएं, स्मोक के तदारुक और ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने का प्लान। जेल रोड, माल रोड और फिरोजपुर रोड को मॉडल रोड्स बनाने के लिए टीपा का प्लान तैयार। तीनों शाहराहों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए तजावज़ात का खात्मा किया जाएगा। मरकज़ी शाहराहों पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। स्मोक के तदारुक और ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने का प्लान बनाया गया है, जिस पर जेल रोड, माल रोड और फिरोजपुर रोड को मॉडल रोड्स बनाने के लिए टीपा का प्लान तैयार। तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइएगा इस प्लान से मुतल्लिक। ज़ैन, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस प्लान से मुतल्लिक। ज़ैन से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं, तीनों शाहराहों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए तजावज़ात का खात्मा किया जाएगा।
मरकजी शाहराहों पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। जेल रोड और दीगर मुल्हक्का इलाकों में ये टीपा का प्लान तैयार किया गया और मरकजी शाहराहों पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। स्मोक के तदारुक और ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने का प्लान बनाया जाएगा, जिस पर जेल रोड, मान रोड और फिरोजपुर रोड को मॉडल रोड्स बनाने के लिए टीपा का प्लान तैयार। और स्पेशल हेल्थ सेक्रेटरी शुएब जदून की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कोरोना की मौजूदा लहर के पेश नज़र सरकारी टीचिंग अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। इजलास में कोरोना के तदारुक के लिए तजावीज़ भी पेश की गईं। कोरोना की हालिया लहर के जायज़े और तदारुक के लिए 2 कमेटियाँ तश्कील दे दी गईं। मोहम्मद बिलाल से तफसीलात जानेंगे। बिलाल, आगाह कीजिएगा। तो कोरोना की रोकथाम के हवाले से आज स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से अहम इजलास हुआ, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत समेत जो सीआर के जो दीगर मेंबरान थे वो भी मौजूद थे। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत और प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम ने भी कोरोना के तदारुक के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। इस मौके पर स्पेशल सेक्रेटरी का ये कहना था कि इजलास के दौरान चीन में कोरोना के आने वाले नए वेरिएंट के तनाजुर में हालात का जायजा लिया गया है और पंजाब में कोरोना की सूरत हाल कदरे बेहतर है, और जबकि कोरोना की हालिया लहर का जायजा तदारुक के लिए 2 कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं। कोरोना की हालिया लहर के पेश नज़र वैक्सीनेशन को बढ़ाने पर खास तवज्जो दी जाएगी और कोरोना से बचाव के लिए आवाम के लिए आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी और आवाम से पब्लिक मुकामात पर मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई है। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल। इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर पार्टी रहनुमाओं का ज़मान पार्क में मशावरती इजलास। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक और दीगर सीनियर रहनुमाओं की इजलास में शिरकत। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत और टेक्नोक्रेट हुकूमत की अफवाहों पर भी बातचीत। इजलास में असम्बलियों की तहलील और कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों पर भी मुशावरत की गई। तफसीलात जानेंगे लियाकत अली से। लियाकत, आगाह कीजिएगा। तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप ने आज इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास समान पार्क में जो हुआ है, इसमें सर जोड़कर इस सूरत हाल का जायज़ा लिया है कि जो मुल्क में नई टेक्नोक्रेट हुकूमत की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस हवाले से PTI की क़यादत ने तशवीश का इजहार किया है। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, परवेज़ खटक, शाह फरमान, इमरान इस्माइल पंजाब और KP से समेत सिंध से जो है PTI की सीनियर लीडरशिप इस इजलास में शरीक हुई और बुनियादी तौर पर इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया गया कि इस कौमी असम्बली को जो PTI के अरकान हैं उनको स्पीकर की जानिब से कबूल नहीं किया जा रहा है, बल्कि ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इसके हवाले से भी जो है वो स्ट्रेटजी का जायज़ा लिया गया। साथ ही साथ पंजाब और KP के असम्बली की तहलील और एतमाद का वोट जो वज़ीर आला पंजाब ने लेना है, इस हवाले से भी मुशावरत की गई है। इस इजलास में इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया गया कि जो इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाब से वफाकी हुकूमत ने राह फरार इख्तियार की है, इस हवाले से भी कहा गया कि एक PDM की हुकूमत जो एक शहर का बलदियाती इलेक्शन करवाने में संजीदा नहीं है, तो वो मुल्क में आम इंतखाबात किस तरह करवाएगी। बिलखसूस अगर PTI की क़यादत जो है वो पंजाब और KP से जो है असम्बलियों को तहलील कर देती है, तो यहाँ पर इंतखाबात कैसे होंगे, इन सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है ताकि आइंदा लाहेअमल इख्तियार किया जाए। PTI की सीनियर लीडरशिप ने जो है वो लॉन्ग टर्म जो केयर टेकर सेटअप जो है टेक्नोक्रेट के नाम पर लाए जाने के जो कोई भी अफवाहें हैं, इस हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया और कहा है कि इस तरह का कोई सेटअप जो है वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा, बल्कि मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा और PTI ऐसे किसी सेटअप की मज़ाहमत करेगी। जी, बहुत शुक्रिया लियाकत। DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद की ज़ेर सदारत तमाम डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायज़ा इजलास। अफसरान की न्यू ईयर नाइट के हवाले से पुलिस की तैयारियों बारे ब्रीफिंग। DIG की डॉल्फिन समेत PRU और दीगर पेट्रोलिंग यूनिट्स को मुतहरिक रहने की हिदायत। हुलड़बाजी, वन व्हीलिंग और फायरिंग से निमटने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जाएगी। आपको आगाह किया जा रहा है DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर की ज़ेर सदारत तमाम डिवीजन्स की कारकर्दगी का इजलास हुआ। इस इजलास का अहवाल जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर की ज़ेर सदारत तमाम रीजनल एसपी के साथ अहम इजलास हुआ है। अफजाल अहमद कौसर ने तमाम रीजनल एसपी की कारकर्दगी का जो है वो जायजा लिया। एसपी कृष्ण मोहम्मद से छोटे एसपी डासन भी जो है मीटिंग में मौजूद थे। अफसान को DIG ऑपरेशन ने हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से पुलिस की तैयारियों के बारे में जो है वो ब्रीफिंग की है। DIG अफजाल कौसर ने अफसान को कहा कि न्यू ईयर नाइट पर डॉल्फिन समेत पीरू और दीगर पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं वो मुतहरक उनका जो किरदार है वो नजर आना चाहिए। DIG ऑपरेशन कौसर ने कहा कि हुलड़बाजी, वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग से निपटने के लिए मौसर अमली जो है वो तमाम एसपी बनाएं। इस वाले से DIG ऑपरेशन ने अफसान को मजीद कहा कि रिकॉर्ड याफ्ता वन व्हीलर
اور ہوائی فائرنگ میں ملوث لوگوں کے جو ضمانتی مچلکے ہیں وہ لیے جائیں. خواتین سے بدتمیزی کرنے والے افراد کے خلاف ضلع امتیاز جو ہے وہ کارروائی. بہت شکریہ مدثر آپ کا. ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 8واں اجلاس. کابینہ نے پنجاب سوشل پروٹیکشن پالیسی 2022 کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس بارے میں کہنا ہے کہ سوشل پروٹیکشن پالیسی کے ذریعے عوام کی فلاح و بہبود کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا. پنجاب کابینہ نے محکمہ زکوٰۃ و عشر، سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے انضمام کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 8واں اجلاس. کابینہ نے پنجاب سوشل پروٹیکشن پالیسی 2022 کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سوشل پروٹیکشن پالیسی کے ذریعے عوام کی فلاح و بہبود کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا. اور یہ بھی بتائیں کہ پنجاب کابینہ نے محکمہ زکوٰۃ و عشر، سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے انضمام کی منظوری دے دی. آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اجلاس کے بارے میں، آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ یہ اجلاس ہوا ہے اور کابینہ نے پنجاب سوشل پروٹیکشن پالیسی 2022 کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مزید بھی کہا گیا کہ سوشل پروٹیکشن پالیسی کے ذریعے عوام کی فلاح و بہبود کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا. پنجاب کابینہ نے محکمہ زکوٰۃ و عشر، سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے انضمام کی منظوری دے دی ہے. اپڈیٹ کیا جا رہا ہے آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے اور کابینہ نے پنجاب سوشل پروٹیکشن پالیسی 2022 کی منظوری دے دی. اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سوشل پروٹیکشن پالیسی کے ذریعے عوام کی فلاح و بہبود کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا. پنجاب کابینہ نے محکمہ زکوٰۃ و عشر، سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے انضمام کی منظوری دے دی. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتایا جا رہا ہے پنجاب کابینہ نے محکمہ زکوٰۃ و عشر، سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے انضمام کی منظوری دے دی. کابینہ نے پنجاب سوشل پروٹیکشن پالیسی 2022 کی بھی منظوری دی. آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سوشل پروٹیکشن پالیسی کے ذریعے عوام کی فلاح و بہبود کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زمان پارک میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. خلاف ورزی اعظم سواتی صاحب کے معاملے میں کی جا رہی ہے اس کے اوپر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. اس سے پہلے آج سینٹ کے جو ممبران ہیں ان کا اجلاس یہاں پہ ہوا. ایک رولز کے بالکل برخلاف قانون کو پس پش ڈال کے جس طرح سے میلوڈی مارکیٹ کے ایک بہت ہی تاریک اور ویران جگہ کو اعظم سواتی صاحب کے لیے سب جیل ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. انشاءاللہ سوموار کو جو سینٹ کے ممبران ہیں وہ اس عمارت کے سامنے جہاں پہ اعظم سواتی صاحب کو گرفتار کر کے رکھا گیا ہے اس کے سامنے احتجاج کریں گے اور انشاءاللہ اسلام آباد کی تنظیم بھی اس میں شامل ہوگی اور ایک بڑا احتجاج اعظم سواتی صاحب کی رہائی کے لیے سوموار کو اسلام آباد میں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اعظم سواتی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اپنی تحفظات کا اظہار کیا ہے اور درست طور کے اوپر کیا ہے. کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ دیکھیں کہ ایک جج جس نے فیصلہ ریزرو کیا ہوا تھا اعظم سواتی کا اس کو ایڈمنسٹریٹو سائیڈ کے اوپر اس طرح سے تبدیل کیا گیا اور پھر نیا جج لگا جس نے آ کے پہلا کام یہی کیا کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ مسترد کی گئی. اور بدقسمتی سے پاکستان کی جو اس وقت جوڈیشل ہسٹری ہے وہ رپیٹ ہو رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اعظم سواتی کے معاملے میں جس طریقے سے انسانی حقوق کو پامال کیا گیا، 45 FIR درج کی گئی، اس کے اوپر ہمیں بڑا شدید کنسرن ہے اور انشاءاللہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کا کہنا ماننا ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچنا ضروری ہے اور ہم انشاءاللہ اس میں پوری پروٹیسٹ جو ہے وہ کریں گے. اس کے بعد کل سے پورے پاکستان میں ایک مہنگائی اور جو اکانومی کا جو حشر نشر ہو گیا ہے، بجلی آ نہیں رہی، گیس کی شارٹیج ہے، تیل مہنگا ہو رہا ہے، کچن آئٹمز جو ہیں وہ آسمان کے اوپر چلے گئے ہیں. ان تمام معاملات کے اوپر کل سے تحریک انصاف ملک گیر احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہی ہے.
3 हफ्तों तक पहले मरहले में हमारे MNAs और MPAs अपने हलकों में इन एहतजाजी तहरीकों की क़यादत करेंगे। पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो बाहर निकलें, तहरीक इंसाफ की इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बने। 3 हफ्तों के बाद इमरान खान इंशाअल्लाह इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे और हम दोबारा सड़क के ऊपर होंगे। और ये सिलसिला जब तक ये हुकूमत नहीं जाती, इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो है वो दोबारा जारी होगा। टेक्नोक्रेट हुकूमत की जिस तरीके से बाज़गश्त सुनाई दे रही है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने आज इसके ऊपर गौर किया है और इसको मुस्तरद किया है। किसी तौर के ऊपर भी टेक्नोक्रेट हुकूमत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है और आइन के तहत नए इंतखाबात पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल है। लिहाजा जो भी क्वार्टर्स पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का ख्वाब देख रहे हैं, हम बता दें कि ये पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ आम इंतखाबात कबूल हैं, इसके अलावा कोई और सेटअप पाकिस्तान में नहीं चल सकता। और मौजूदा हुकूमत को भी हम कहना चाहते हैं कि आप गैर आइनी मामलात में शराकतदार ना बने। बहरहाल आप सियासी जमातें हैं, आप इलेक्शंस के ऊपर जो है वो अपना फोकस करें, पाकिस्तान के अवाम के पास जाने की हिम्मत पैदा करें। जो आपका एटीट्यूड है कि आपने इलेक्शनों से भागना है, चाहे उसके लिए आपने पहले नवाज शरीफ ने इस मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की, जब उसने फ़ौज की जो लीडरशिप की तब्दीली का मामला था उसके ऊपर तनाज़ा बना के नवाज शरीफ मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते थे। सिर्फ इमरान खान के तदब्बर और तहम्मुल की वजह से ये ट्रांजिशन मुकम्मल हुई और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो, चाहे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बन जाए। देखें, इसके ऊपर ये मुमकिन नहीं होगा। जो भी टेक्नोक्रेट्स आएंगे वो मामलात को नहीं संभाल सकेंगे। और मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहता हूँ कि फिर सारा जो कसूर है वो आपका निकलेगा और आपके ऊपर उसका ब्लेम आएगा। लिहाजा इस मामले के ऊपर बहुत गहरा गौर व हौज करें। और पहले आइडियाज़ 7-8 महीने में जिस तरह के आइडियाज़ आए और नाकाम हुए, ये भी एक और ऐसा ही आइडिया होगा जो बुरी तरह पिट जाएगा। ऐसे आइडियाज़ ना सोचें। पाकिस्तान को लैब रैट ना बनाया जाए, हमें लेबॉर्ट्री का चूहा ना समझा जाए पाकिस्तान के अवाम को, जिसके ऊपर रोज़ नया तजर्बा करना ज़रूरी है। पाकिस्तान के अवाम को आइन में दिए गए हकूक़, आइन में दिया गया सियासी निज़ाम उनका हक है। फंडामेंटल राइट्स जिस तरह सस्पेंड हैं गुज़श्ता 8 महीनों से पाकिस्तान के अवाम के, वो फौरी बहाल किए जाएँ, पाकिस्तान का आइन बहाल किया जाए और इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। ये हमारा आज का बुनियादी फ़लसफ़ा है और बयानिया है और इसी के ऊपर हम जो है वो समझते हैं कि वो आगे बढ़ना चाहिए। चौथा नुक्ता जिसके ऊपर आज सीनियर लीडरशिप में बात हुई है वो पंजाब में हुकूमत की तब्दीली है। देखिए, हम मेजॉरिटी पार्टी हैं इस वक्त पंजाब में। इस वक्त तहरीक इंसाफ और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म है उसके 190 मेंबरान हैं जो कि इस वक्त पंजाब असम्बली में हैं। ये हुकूमत बनाना, इसको डिज़ोल्व करना, ये हक इस वक्त तहरीक इंसाफ को हासिल। लिहाजा ये जो भी मामला चल रहा है जिसमें ये कोशिश हो रही है कि पंजाब में हुकूमत तब्दील की जाए, पहले गवर्नर इस साजिश का हिस्सा बने और गवर्नर ने एक गैर आइनी इक़दाम उठाया। अभी गवर्नर को पंजाब असम्बली में हाज़िर होके पेश होके अपने इक़दाम की वजाहत देनी चाहिए। उन्होंने उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन दिया है। उसी तरीके से जो चीफ सेक्रेटरी है उनको अपनी पोजीशन जो है उसको वाज़े करने की ज़रूरत है। और पंजाब में जो हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेला गया, हम अब स्पीकर पंजाब असम्बली को ये कहने जा रहे हैं कि आसफ जरदारी, नासिर अली शाह और शर्जील मेमन के दौरे पंजाब की जो तफसीलात हैं वो इलेक्शन कमीशन से शेयर की जाएं। ये क्या मामला है कि जब भी मंडी लगती है जरदारी साहब
बोरियां भर के सिंध से पंजाब में आ बैठते हैं। आपने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के ऊपर जो इन्होंने प्राइवेट जहाज़ बुक किए और उसके अंदर पूरी लीडरशिप पार्टी करती हुई गड़ी खुदा बख्श। इसी तरह का एटीट्यूड इनका पाकिस्तान के लोगों के बारे में है। पाकिस्तान के मोरालिटी तबाह करने में जो जरदारी एंड कंपनी का किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं। लिहाजा जो इस वक्त मामला चल रहा है कि पंजाब में एमपीएस को ख़रीदा जाए और ख़रीद के पहले मरहले में उन्हें कहा जाए कि आप असम्बली से एब्सेंट हो जाएं। किसी को कहा जा रहा है कि आप दुबई भेज देते हैं, किसी को कहा जा रहा है कि आपको उम्रे के लिए भेज देते हैं, किसी को कहा जा रहा है कि आपको लंदन अमेरिका भेज देते हैं और साथ आपका सारा जो मामलात हैं वो भी हम टेक केयर करेंगे। बहुत ही कोई मैं समझता हूँ कि बेगैरत ही होगा जो इस किस्म की ऑफ़र जो है उसको कबूल करेगा। और मुझे उम्मीद है कि पंजाब असम्बली के तमाम अरकान अपनी लीडरशिप के साथ मुखलिस हैं, मुखलिस रहेंगे। और 20 लोग जिन्होंने पहले छोड़ा था उनका हशर भी आपने देख लिया कि पाकिस्तान के लोगों ने उनकी सियासत ही ख़त्म हो गई। जो लोग मौके के ऊपर तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए, इंशाल्लाह ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का खेल है इसको भी नाकाम हम बनाएंगे। नो कॉन्फिडेंस मूव के लिए हमने पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो जनवरी के पहले हफ्ते में हमने तलब किया है। डेट उसकी फाइनलाइज जो है वो हो जाएगी और उसके बाद हम जो ही कॉन्फिडेंस मूव लेंगे हमने पाकिस्तान की ये जो पंजाब असम्बली है उसकी तहलील की तरफ हम जाएंगे। ये हमारा फ़ैसला जो है वो उसके ऊपर बिल्कुल मुतफ़िक़ा है। यहाँ पे मैं सिर्फ आखिर में जो MNAs आज असम्बली में पेश हुए उस पर बात करना चाहता हूँ। हमारे 127 MNAs ने असम्बली में इस्तीफ़ा दिया, उनमें से 123 MNAs ने असम्बली में खड़ा होकर इस्तीफ़ा दिया। ये इस्तीफ़े इज्तिमाई थे। हम इज्तिमाई इस्तीफ़े देना चाहते हैं क्योंकि ये हमने कोई स्पीकर साहब के लिए एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त नहीं किया हुआ कि जो स्पीकर साहब जो है किसी काम लग जाएं। मेरा बड़ा एहतराम है राजा परवेज़ अशरफ साहब के लिए, आज उन्होंने गिला भी किया है, लेकिन बात यह है कि स्पीकर के ओहदे के तकाजे आपने वो 11 लोग जिनके इस्तीफ़े आपने मंजूर किए, क्या आपने उनको बुलाया था? आपने उनको नहीं बुलाया था। क्या आपने उनके उन इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए उनसे रब्ता किया था? आपने नहीं किया था। आपने उन 11 लोगों के इस्तीफ़े इसलिए कबूल किए जो बाद में सामने भी आ गया कि वो आप समझते थे कि ये लोग उन सीटों से जीते हैं जहाँ तहरीक इंसाफ कमज़ोर है और आपका ख्याल था आप जीत जाएंगे, आप बुरी तरह हार गए। उसके बाद आपके सामने ये सारे इस्तीफ़े इज्तिमाई सब ने खड़ा होकर जावेद हाशमी केस वाज़े है, असम्बली में खड़ा होकर कह दिया आपने आपके इस्तीफ़े मान लिए जाए। आज जो आपने अखबारों में जो है अपने मनपसंद मीडिया के ज़रिए कहा कि 4 लोग जो हैं जी वो मुझे ये कह गए हैं, 4 ये 6, आप उनके नाम दें। 3 नाम जो आपने आज ये जो मीडिया में लीक कराए गए और मैं ये समझता हूँ कि वो उसको चैनल को सू भी करने जा रहे हैं, जिसमें आपने तालिब नकई का नाम लिया, आपने बीबी गुलाम बीबी भरवाना का नाम लिया और आपने लाली साहब का नाम लिया। तीनों वीडियोस बना के उन्होंने जो है वो दी कि हमारे इस्तीफ़े फ़ौरन कबूल करें। कोई इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो MNA है वो तैयार नहीं है इस असम्बली में बैठने के लिए, और जो 20 लोटे इस वक्त असम्बली में बैठे हुए हैं उनकी हैसियत औकात ये रह गई है कि वो अपनी। बुलेटिन में अब बात करें महंगाई की। महंगाई के चक्कर में अवाम चकरा गए, रोटी खाना भी मजीद मुश्किल होने लगा। नान पाई एसोसिएशन रोटी और नान 11 रुपये महंगा करने के मुतालबे पर डट गई। अवाम कहते हैं कि हुकूमत कीमत ना बढ़ाने को यकीनी बनाए। महंगाई ट्रेन मजीद तेज रफ्तार होने लगी, रोटी के भी लाले पड़ गए। तनूर मालिकान ने कमर कस ली, महंगाई को जवाब बनाकर गेंद जिला इंतजामिया की कोर्ट में डाल दी। नान बाई एसोसिएशन रोटी नान 11 रुपये महंगा करने के मुतालबे पर डट गई। नान बाई एसोसिएशन ने DC लाहौर को बाकायदा खत लिख दिया। तनूर मालिकान का कहना है कि आटा बिजली गैस महंगी होने से रोटी नान के निर्ख भी बढ़ाए। अवाम का कहना है कि पहले ही महंगाई बहुत है, 2 वक्त की रोटी भी छीनी जा रही है, रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। एक इंसान की रोटी जो है ना वो जो है ना उससे दूर होती जा रही है खाने के लिए, तो ये हमारी हुक्मरानों को चाहिए कि आवाम के लिए ये सोचे। बाजार से लेने आप 4 रोटियां चाहे 100 रुपए की 4 रोटियां हैं, क्या समझे गरीब आदमी क्या कर सकता है?
बाजार से आटा नहीं मिल रहा, वो घर में पकाएगा उसको फ़ायदा है, बाजार से लेकर महंगाई सर फाड़ रही है। मार्केट में इस वक्त रोटी 15 और नान 25 रुपए का बेचा जा रहा है और तनूर मालिकान ये भी कह रहे हैं कि अखराजात बढ़ने के बाद रोटी नान महंगा करना मजबूरी है। हुकूमत नई कीमत मुकर्रर करे वरना खुद ही कीमत बढ़ाने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। और फ़ारसी की मुश्किल तराकीब, शायरी में कहीं शोखी और ज़राफ़त के रंग तो कहीं ज़िंदगी की हकीकतों के अदराक, नसर में भी कमाल की तहरीरें, गोया क्या है जो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के यहाँ नहीं मिलता। 27 दिसंबर 1797 में पैदा होने वाले मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब, इनके आबाओ अजदाद का पेशा तो सुपाहगिरी था, लेकिन जाने क्या सूझी कि गालिब ने शेर व शायरी का मैदान चुन लिया और फिर तो जैसे इस मैदान में हमेशा के लिए अपने ही नाम का सिक्का जमा लिया। तभी तो आज भी बिला झिझक ये कहा जा सकता है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और इस अजीम शायर के यौम पैदाइश की मुनासबत से लाहौर म्यूजियम में शुरू हुई नुमाइश ब्याद गालिब। इसमें गालिब के 16 के करीब ख़त हमने नुमाइश के लिए पेश किए हैं और इसके अलावा गालिब के कुछ दवावीन जिसमें कुलियात फ़ारसी और उर्दू के पुराने दीवान हैं उनके पहले एडिशंस और गालिब पे छपी हुई डाक टिकटें, कुछ पेंटिंग्स और आर्ट वर्क्स भी इस नुमाइश का हिस्सा है। मुश्किल अल्फाज और तरकीब के साथ साथ गालिब के यहाँ आसान जुबान भी मौजूद है। क्या खूब के जुबान की सादगी अशार की मानवी कदर कीमत पर कोई बुरा असर नहीं डालती बल्कि उनके हुस्न में मजीद इजाफा करती हैं। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। तो बस इस नुमाइश के दौरान देखने वालों के हाथ बहुत कुछ लगा तो सभी इस चश्मे से खूब सैराब हुए। मुझे भी नोहा हुई है और जो मेरे साथ लोग आए, मेरे साथ कुछ यंगस्टर्स और आए, तो उनको भी उनके बारे में और उर्दू अदब के बारे में काफ़ी शौक़ भी पैदा हुआ है, उनके बारे में भी पता चला। वो बहुत एक रेवोल्यूशनरी पोइट थे जिन्होंने फंडामेंटली चेंज कर दिया था पोइट्री को, उर्दू पोइट्री को, पर्शियन पोइट्री को। आज की जो उन बुनियाद है ना उर्दू ज़ुबान की, उनकी शायरी पे है, तो इधर उनके खतूत भी हैं और उनके बारे में और नया सीखने को भी मुझे बहुत ज़्यादा मिला। मिर्ज़ा गालिब के वो खतूत भी नुमाइश का हिस्सा रहे जो आगे चलकर आसान और मकबूल उर्दू की बुनियाद बने और कलाम गालिब के हवाले से मुतअद्दिद पेंटिंग्स भी नुमाइश का हिस्सा रहीं। शायद हमारी जनरेशन वो लास्ट जनरेशन थी या हमसे पहले वाले जो कि इन नेशनल पोइट्स की और इनकी अहमियत और ज़ुबान की अहमियत को जानते थे। आजकल के बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह के इवेंट्स बार बार ऑर्गेनाइज़ करें। इसके लिए मैं लाहौर म्यूज़ियम जो कि टूरिज़म डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है उसको मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। ये मुनफरिद नुमाइश 10 जनवरी तक अपने देखने वालों के लिए चश्म बराह रहेगी। हमारे यहाँ तो अब अदब के हवाले से कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। वो कहते हैं ना कि नगमा है गम को भी है दिल गनीमत जानिए, बेसदा हो जाएगा ये साज़े हस्ती एक दिन। हाँ, अलबत्ता अगर तसलसल के साथ इस तरह की नुमाइशों के इनाकात को यकीनी बनाया जाए तो सूरत हाल में किसी कदर बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है। फिल वक्त इतना ही।